Good morning, students. Today we are going to study our next chapter. Chapter number is 16th, present continuous tense. We are going to read this. So please open this chapter of your grammar book. Present continuous tense. Look at these sentences. I am reading a story. We are learning the use of tenses. Sunny is writing a letter. They are quarreling with each other. The verbs in these sentences are in present continuous tense. So dear students, now you can see that here some words are written in the bold letters. These are the verbs. And you know that by the help of verbs we recognize any tense. हमें वर्ब से पता लगता है कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, हम कौन सा टेंस लिख रहे हैं. So whenever you use the form of be, जब कभी आप be की फॉर्म्स यूज करते हो, like is, am, are, and with that you use ing form of main verb. अब मेन वर्ब की ing वाली फॉर्म यूज करते हो. सो इट मीन्स यू आर राइटिंग और यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो जब कभी आप ing वाली फॉर्म और उससे पहले बी की फॉर्म्स यूज करते हो तो इसका मतलब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात कर रहे हो. उस टेंस वो टेंस आप यूज कर रहे हो, राइट? हाउ टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? We use is-am-are plus ing form of the verb am reading, is writing, are quarreling. The ing form of verb, adding ing to the verb, normally we add ing to the root form of the verb, read, reading, learn, learning. If a verb ends in e, we drop this e, write, writing, drive, driving. In the case of some verbs, the last letter is doubled, like hit, hitting, begin, beginning, quarrel, quarreling. In the case of the verb ending in ie, we change the ie to y, like die, dying, lie, lying, tie, tying. So dear students, here we have to understand how we form the present continuous tense. I have told you we should use is-am-are plus ing form the main verb. हमें is-am-are यूज करना है, उसके साथ ing वाली फॉर्म यूज करनी है, राइट? अब बेसिकली ये समझ लो कि हमें कहाँ पे is यूज करना होता है, कहाँ पे am यूज करना और कहाँ पे are यूज करना है. तो हमें तीन वर्ब्स, तीन हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी है. is, am, are. कौन सी कहाँ पे यूज करनी है वो हमें समझना है. आई के साथ हम एम यूज करते हैं, आई के साथ एम फिक्स होता है, राइट? सो एंड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर, with the third person singular like he, she, it और any one name. किसी भी एक नेम के साथ ही के साथ और शी के साथ is यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ आर यूज करते हैं. दोबारा समझो, आई के साथ एम, ही, शी, इट और नेम के साथ इज, बाकी सभी के साथ आर, राइट? आई एम रीडिंग, ही इज राइटिंग, वी आर क्वारलिंग, राइट? So C point, in this C point we have to understand to make the ing form of the verb. Basically we put the ing, हम just ing लगा देते हैं verb के first form के साथ, root form के साथ. जैसे read से reading बन गया, learn से learning बन गया. And second thing we have to understand, if a verb ends in e letter, अगर हमारी verb e letter पे end होती है, उसके साथ हमें ing ऐड करना है, like write, writing, तो हम e को ड्रॉप कर देते हैं, ड्राइव, ड्राइविंग, राइट? थर्ड पॉइंट में हमने समझना है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उसकी लेटर को हम डबल कर देते हैं जब आईएनजी लगाते हैं, जैसे हिट, हिटिंग, बिगिन, बिगनिंग, क्वर्ल, क्वर्लिंग. अगर किसी लेटर का एंड आई ई लेटर्स पे, किसी वर्ड का एंड आई ई लेटर्स पे होता है तो उसको हटा के हम वाई लगा देते हैं जब उसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे डाई, डाइंग, lie, lying, tie, tying, right? So these were the four rules of using the ing form. Next, D point.
Where to use the present continuous tense? The present continuous tense expresses an action that is going on, an action that is in progress at the time of speaking. In the sentence given above, reading, learning, writing, quarreling are still going on. We can say that these actions are still continue. That is why we call this tense present continuous tense. तो ऐसे एक्शंस, अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि किस बातों के लिए, किस एक्शंस के लिए, किस काम के लिए हमें ये टेंस यूज करना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि ऐसे एक्शंस, ऐसी बातें जो बोलते समय गोइंग ऑन हो, चल रही हो। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। तो बोलते समय जब कोई काम गोइंग ऑन हो, चल रहा हो, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो अभी, अब तो आप बोल सकते हो कि मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग माई मोबाइल फोन। तो यानी कि ऐसे एक्शन जो बोलते समय गोइंग ऑन हो, चल रहे हो, प्रोसेस में हो, अभी खत्म ना हो, तो उनके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, राइट। Present continuous tense, an action going on now, an action in progress at the time of speaking. देखो ये दो बातों के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फर्स्ट, एन एक्शन गोइंग ऑन नाउ, एक ऐसा एक्शन जो अभी चल रहा हो परंतु बोलते समय नहीं चल रहा है, इन दिनों, इस टाइम के दौरान चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूं, जैसे आप कहते हो कि मैं इन दिनों टेंसेस सीख रहा हूं। आप शाम को बोलते हो, कि आपसे पूछता है कि आप क्या सीख रहे हो इंग्लिश की क्लास में, तो आप बोलते हो कि मैं टेंसेस सीख रहा हूं। तो उसी समय नहीं सीख रहे हो, परंतु उस समय के दौरान सीख रहे हो, उन दिनों सीख रहे हो। तो वहां पे भी आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करना है। आप बोल सकते हो आई एम लर्निंग द टेंसेस, राइट। तो ऐसे एक्शंस जो बोलते समय गोइंग ऑन उसी समय नहीं है, परंतु उस समय के दौरान वो चल रहे हैं, तो उन एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और उनके लिए तो करते ही हैं जो बोलते समय चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई घर में आपसे पूछता है कि आप क्या सीख रहे हो ऑनलाइन क्लास में, आप बोलते हो कि मैं ऑनलाइन क्लास में टेंसेस सीख रहा हूं। तो बोलते समय वो काम गोइंग ऑन है, चल रहा है, तब यूज कर सकते हो आई एम लर्निंग द टेंसेस इन द ऑनलाइन क्लास। For such actions which is going on now, we can use for them present continuous tense. And the actions which are going on, which are in progress at the time of speaking, for those actions we also use present continuous tense, right? So write down the ing form of the flowing verbs. For your convenience, I have written the answers of this. So now please take the pencil in your hand and start writing. And even you can take the screenshots of like this slide. E exercise, write down the ing form of the flowing verbs like break, breaking, buy, buying, come, coming, cut, cutting, die, dying, fly, flying, forget, forgetting, lose, losing, put, putting, sit, sitting, teach, teaching, write, writing. So you need to fill these exercise. Come on the next exercise. Fill in the blanks with the correct form of the present continuous tense of the verbs given in the brackets. जो verbs brackets में दी गई हैं, आपने वो verb use करके वहां पे present continuous tense fill करना है। Basically, I have told you, whenever we have to make any tense, basically we have to see the verbs. Those verbs can be helping verb or main verb. तो हमने जो ध्यान रखना है वो verbs का ध्यान रखना है। उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज एम आर। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं। सो आई हैव टोल्ड यू कि लाइक वी हैव थ्री ऑप्शंस, इज एम आर। सो विच वी हैव टू पुट हियर। सो मैं इज एम आर में से कौन सी वहां पे लिखनी है वो कौन बताएगा, वो बताता है हमारा सब्जेक्ट, राइट। तो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हमें इज यूज करना है या एम यूज करना है या आर यूज करना है। मैंने आपको बता दिया है कि आई के साथ तो एम आएगा, एम तो फिक्स है आई के साथ। विद ही शी इट और कोई एक नेम,
विद ही, शी, इट और कोई भी एक नेम जो नेम सिंगुलर हो, तो उसके साथ हमें इज यूज करना है, बाकी सभी के साथ आर यूज करना है. लाइक यू कैन सी दैट दे डैश furniture for their new flat. Buy, they are buying because they is third person plural. I have told you with the I we need to use am, he, she, it, and name we need to use is, and with the rest of subjects we should use are. So जो they हैं वो he, she, it और name में से नहीं है, इसलिए उनके साथ are use करना है. She is running. I have told you with the she we should use is. Sapna and Anu. So now you can see that two names are here. एक नेम नहीं है, दो नेम है, तो यहाँ पे आर सीटिंग हमने फिल की है. अगर यहाँ पे एक नेम होता सपना इज सीटिंग हम लिखते, बट यहाँ सपना एंड अनु है, वो नेम क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो इसलिए हमने आर सीटिंग लिखा है. आई एम लुकिंग, विद द आई वी नो दैट वी शुड यूज एम. यू आर वियरिंग, यू के साथ हमने आर फिल करना है. शी इज डिस्कसिंग, with the she we should use is. It is raining, I have told you with it we should use is. All the schools, I'm not talking about one school, I'm not talking about one name. School is a common noun, that is the name. So we are talking about more than one schools. हम एक स्कूल से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं. That's why we have written here are. All the schools are taking precautions against the H1N1 flu. Next, G exercise. Speak out these sentences using the present continuous tense. Add a word or a phrase from those given below to each sentence. Leave out the word in the brackets for oral practice. तो आपने ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज करके इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है, ओरल प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल के देखना है. एट दिस मोमेंट ये वर्ड यूज कर सकते हो आप, नाउ यूज कर सकते हो, टुडे यूज कर सकते हो. जैसे आई प्ले चेस विद माई फादर एवरी नाइट. So this is a sentence of daily routine, but we have to convert this sentence in the present continuous tense. So we will use here I am playing chess with my father now. So at this moment, now, today, these words you should use while doing the oral practice, right? Like you can say that she washes her clothes in the evening. She is washing her clothes at this moment. My grandfather does some breathing exercise. So you can say that my grandfather is doing some breathing exercise now. They repair the damaged roads every year. So you can say in the present continuous tense, they are repairing the damaged roads today. The farmer plows the fields regularly. We can say that the farmer is plowing the fields now. The doctor examines the patients in the morning. We can say that the doctor is examining the patient at this moment. My mother often me with my homework. We can say my mother is helping me with my homework today. So these exercise like these sentences are for the oral practice, right? Next, simple present tense or present continuous tense. Look at these sentences. The stars shine at night. The stars are shining now. तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है, हमें यहाँ पे वो समझना है. तो जब हम किसी चीज के बारे में उसकी डेली रूटीन के एक्शंस के बारे में बताते हैं, यानी कि ये बताते हैं कि कोई पर्सन ये काम करता है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसके लिए यूज करते हैं जो जस्ट नाउ अभी वो कोई काम चल रहा हो, प्रोसेस में हो. ठीक है, जैसे मैं कहता हूं स्टार्स शाइन एट नाइट, तो हम बता रहे हैं कि नाइट के समय में जो स्टार्स होते हैं वो शाइन करते हैं, चमकते हैं. तो मैं ये बता रहा हूं कि वो क्या काम करते हैं, उसकी रूटीन के एक्शंस के बारे में बता रहा हूं. और फिर मैं कह रहा हूं द स्टार्स आर शाइनिंग नाउ. अब जो स्टार्स हैं वो शाइनिंग कर रहे हैं, चमक रहे हैं.
राइट। तो ये डिफरेंस होता है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। यानी कि जिसमें हम ये बताएं कि कोई पर्सन कोई काम करता है तो वो क्या होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस से सॉरी सिंपल प्रेजेंट, और जिसमें हम ये बताएं कि कोई पर्सन कोई काम कुछ कर रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसे मैं कहता हूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो वो सेंटेंस क्या है, मैं ऐसे एक्शन की बारे में बात कर रहा हूं जो मैं हर रोज करता हूं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर मैं कहूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैं इस ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहा हूं जो अभी बोलते समय मैं वो कर रहा हूं, तो उसके लिए करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। राइट। The first sentence is in simple present tense. It makes a statement about the stars that is always true. जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ये स्टेटमेंट करता है कि स्टार क्या करते हैं, वो ऑलवेज ट्रू होता है, वो सच होता है। बट इट डज नॉट से वेदर द स्टार्स आर शाइनिंग नाउ, परंतु इस बात को नहीं बता रहे कि स्टार अभी शाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द सेकंड सेंटेंस सेज, और ये सेकंड सेंटेंस बताता है इस बात को। द सेकंड सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो सेकंड सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्शंस दैट आर डन रेगुलरली एज ए मैटर ऑफ हैबिट। सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो रेगुलरली होते हैं, जो हमारी हैबिट को शो करते हैं। Words like usually, generally, always, sometimes, every day are often used with this tense. तो ये जो वर्ड्स हैं जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में। Present continuous tense actions going on at the time of speaking, words like now, at this moment, today are often used with this tense. तो ये जो वर्ड्स हैं नाउ, एट दिस मोमेंट, टुडे, तो ये वर्ड्स शो करते हैं कि जो एक्शंस है बोलते समय चल रहा है, तो उनके लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। यू कैन सी वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम हर रोज स्कूल जाते हैं। मैं एक ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहा हूं जो मैं हर रोज करता हूं। वी आर गोइंग टू स्कूल नाउ, अब मैं ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहा हूं जो अभी मैं बोलते समय कर रहा हूं, हम स्कूल जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वी हैव टू यूज हियर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म द प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हमें यहाँ पे या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना है या फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भरना है। राइट। दे आर प्रेइंग टू गॉड नाउ, नाउ वर्ड से शो हो रहा है कि वो काम अभी अभी बोलते हुए चल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फिल किया है दे आर प्रेइंग। राइट। दे यूजुअली प्रे टू गॉड बिफोर गोइंग टू बेड, तो यूजुअली वर्ड से पता लग रहा है कि वो ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो हर रोज करते हैं, अक्सर करते हैं, तो उसके लिए हमने यूज करना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। थर्ड, दे यूजुअली ड्राइव्स सॉरी ही यूजुअली ड्राइव्स द कार स्लोली एंड केयरफुली, तो यहाँ पे भी यूजुअली वर्ड से पता लग रहा है कि वो जो काम है वो अक्सर करने वाले काम की बात कर रहा है। टुडे ही इज ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट, टुडे से पता लग रहा है कि वो जो एक्शन है अभी बोलते समय चल रहा है, आज बोलते समय चल रहा है। प्रशांत इज वॉचिंग ऑन द लाइट्स नाउ, सो स्विचिंग ऑन द लाइट्स नाउ, सो जो प्रशांत है वो लाइट को स्विच ऑन कर रहा है, अभी कर रहा है। नाउ वर्ड से पता लगा कि वो एक्शन अभी गोइंग ऑन है, तो इसलिए हमने वहां पे इज स्विचिंग लगाया। वी स्विच ऑन द लाइट्स एट 6 PM एवरी डे, एवरी डे से पता लग रहा है ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो हर रोज हम करते हैं, इसलिए वहां पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जहां पे हमने वो स्विच लिखा है। राइट। So this is all about this tense, present continuous tense. Once again, let's take the revision of this. Present continuous tense हमें वर्ब से पता लगता है, कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा होता है, सो वी रिकॉग्नाइज दैट सेंटेंस फ्रॉम द वर्ब, वर्ब से हमें पता लगता है कि वो कौन से टेंस, उसमें सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया हुआ है, तो वहां पे जो वर्ब्स होती हैं उससे पता लगेगा कि वो टेंस कौन सा है। तो अगर किसी टेंस के अंदर इज एम आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी हो और साथ में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म दी हो, तो हमें समझ लेना है कि वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसलिए इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर और साथ में मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो इज एम आर में से कौन सी हमने किसके साथ यूज करनी है, इज यूज करना है, एम यूज करना है या आर यूज करना है, वो बताता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिसाइड्स ऑल द रूल्स, सब्जेक्ट से रूल डिसाइड करते हैं। तो if our subject is I, so we should use M, and with the he she it or any one name we should use is,
एंड विद द रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बच जाते हैं हमें सभी के साथ आर यूज करना होता है। आई के साथ एम, ही शी इट और नेम, कोई एक नेम के साथ इज, बाकी सभी के साथ आर। आईएनजी फॉर्म जब बनाते हैं तो बेसिकली आईएनजी लिख देते हैं रूट फॉर्म के साथ, अगर उसके बाद ई वर्ड हो किसी वर्ब में तो ई को हटा के हम आईएनजी लिखते हैं। अगर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमने लास्ट लेटर डबल कर देते हैं, और अगर आई ई पर कोई वर्ड एंड होता है उसके साथ हमें आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है तो वाई आई एन जी लगाना होता है, राइट। उसके बाद हमें समझा है कि एट दिस मोमेंट नाउ टुडे, ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे हमें पता लगता है कोई एक्शन अभी गोइंग ऑन है, चल रहा है। तो कोई काम बोलते समय चल रहा हो या उस टाइम के दौरान चल रहा हो तो उसके लिए हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करना होता है। एट दिस मोमेंट, नाउ, टुडे, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिससे हमें पता लगता है कि कोई काम अभी बोलते समय चल रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में फर्क ये होता है कि सिंपल प्रेजेंट में हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जिसमें हम ये शो करते हैं कि कोई पर्सन कोई काम हर रोज करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि मैं स्कूल जाने का काम करता हूँ, तो मेरी हैबिट है, वो मेरा रूटीन है वो, तो उसके लिए मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं एक ऐसे एक्शन की बात कर रहा हूँ जो मैं बोलते समय अभी कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करना होता है। सो यू नीड टू फिल दिस एक्सरसाइज, राइट। नाउ लेट्स रीड on our next story writing. Today we will understand the third story. Third story is that giving is important, यानी कि देना भी important होता है। Some outlines are written here. A king went out to meet his people. एक king होता है वो अपने लोगों से, प्रजा से मिलने जाता है। A beggar approached, beggar उसके पास आता है, ask for alms, भीख मांगता है उससे, give me something first, said the king. किंग ने ऐसा कहा कि पहले तुम मुझे कुछ दो। द बैगर अनोइड, बैगर था वो अनोइड हो गया, चिढ़ गया, परेशान हो गया। थ्रू अ ग्रेन ऑफ राइस एट द किंग, एक राइस का एक राइस का एक दाना उस किंग की तरफ फेंक देता है चिढ़ के। द किंग थ्रू बैक अ गोल्ड क्वाइन एंड रोड अवे, उसके ऊपर वापस किंग एक गोल्ड क्वाइन फेंक देता है बैगर की तरफ और वहां चला जाता है। बैगर फेल्ट सॉरी, बैगर सॉरी फील करते हैं। तो इस तरह some outlines will be given in your final exam also. So in final exam some outlines will be given there, so according to those outlines you should make a story, right? So story is written there, giving is important. Once a king went out to meet his people, एक बार एक राजा अपने लोगों से, अपनी प्रजा से मिलने जाता है। Many people stood along the streets to see the king and receive gifts. बहुत सारे लोग सड़क के किनारे खड़े होते हैं, स्ट्रीट गलियों के किनारे खड़े होते हैं उस किंग को देखने के लिए, और वो किंग कुछ उनको गिफ्ट दे दे इसके लिए, यानी कि वो लेने के लिए वहां खड़े होते हैं। एट वन पॉइंट द किंग केम अक्रॉस अ बैगर, एक पॉइंट पर किंग के पास एक बैगर आता है। द बैगर वॉज कैरिंग अ बाउल विद सम ग्रेन्स ऑफ राइस इन इट, उसके बैगर के हाथ में एक बाउल होती है, एक कटोरी होती है और उसके अंदर कुछ चावल के दाने होते हैं। He requested the king to give him alms. आम का मतलब होता है भीख। तो आर्म्स कुछ डिमांड करता है, वो डिमांड करता है कि किंग से कि मुझे कुछ भीख दे दो। द किंग वॉज मूव टू pity टू सी द पुअर बैगर, किंग वापस मुड़ता है, उसके ऊपर दया आती है उस बैगर के ऊपर और उसको देखने के लिए वापस मुड़ता है। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट समथिंग, वो किंग अपनी पॉकेट में हाथ डालता है कुछ बाहर निकालने के लिए। सडनली he had an idea and said to the beggar, give me something first. और अपनी जैसी पॉकेट में हाथ डालता है उस किंग के माइंड में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है और वो उस बैगर को कहता है कि पहले तुम मुझे कुछ दो। The beggar, who was expecting rich gifts, was annoyed at the king's words. तो जैसे ही बैगर उसकी बात को सुनता है, उस किंग की बात को सुनता है और वो उम्मीद कर रहा था कि मुझे कुछ महंगे गिफ्ट्स मिलेंगे इस किंग के द्वारा, और जैसे ही वो किंग की वो बात सुनता है जो किंग कहता है कि पहले तुम मुझे कुछ दो, वो अनोइड हो जाता है, यानी कि चिढ़ जाता है। What can a poor beggar give to the king? फिर वो कहता है कि एक बेगर, एक गरीब भिखारी कैसे किंग को कुछ दे सकता है। सेड ही, कि उसने ऐसा कहा, उस भिखारी ने ऐसा कहा। एंड थ्रू अ ग्रेन ऑफ राइस फ्रॉम हिज बाउल एट द किंग,
और गुस्से में आके उसने कहा ठीक है तुम डिमांड कर रहे हो, मांग रहे हो, तो उसने एक राइस का दाना उसकी तरफ, किंग की तरफ वो फेंक देता है। In the return, the king threw one gold coin in his bowl and rode away. तो फिर क्या करता है किंग, वो जैसे ही वो दाना उसकी तरफ फेंकता है किंग की तरफ, तो किंग क्या करता है, एक गोल्ड कॉइन यानी कि एक सिक्का उसकी तरफ फेंक देता है और वहां से चला जाता है। द beggar felt sorry that he had thrown only one grain of rice. तो beggar इस बात पे बड़ा सॉरी फील करता है, बड़ा गलत महसूस करता है कि काश उसने एक से ज्यादा दाने फेंके होते, उसने एक दाना ना फेंका होता। इन लाइफ वी हैव टू गिव बिफोर वी कैन रिसीव एनीथिंग। तो हमें यहाँ पे स्टोरी बता रही है कि हमें लाइफ में देना सीखना चाहिए रिसीव करने से पहले, यानी कि हम किसी को कोई चीज किसी से लेते हैं तो हमें देना भी आना चाहिए, राइट? सो दिस स्टोरी यू हैव टू लर्न एंड राइट इन योर फेयर नोटबुक।